Good morning, students. Today we will start related to photosynthesis. Yesterday I told you what things are necessary in this process. Now you will see about the reaction of photosynthesis. So what is the reaction of photosynthesis? We know very well 4 components are necessary in the process of photosynthesis. So first one is here carbon dioxide. First component is here carbon dioxide. So that is second one water. We need here water, and in the presence of sunlight, and chlorophyll. So we know very well chlorophyll is present inside the leaves. Sunlight plants will take from the sun. CO2 plants will take from the atmosphere, and water plants will take through the roots. So these all 4 components are completed here. In the presence of these all 4 components, plants will make their one material, and that is ग्लूकोज. इन्होंने जो फूड प्रिपेयर किया, ये फूड होता है ग्लूकोज, एंड ये रिलीज करते हैं यहाँ पर एक गैस, दैट इज ऑक्सीजन. Okay, so this is the process of photosynthesis. We can say that is the reaction of photosynthesis. If we want to write these all things in a chemical formula, then we can write the process of photosynthesis in this form. Now you will see here this reaction. For the balance of this reaction, we will take 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water. In the presence of sunlight and in the presence of chlorophyll, plants will make here carbohydrate. It is a form of carbohydrate जिसको हम ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ग्लूकोज ही क्या होता है, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट होता है. सो दैट इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट. फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, that is glucose, and it will also release here oxygen. So we know very well this carbohydrate is main product and oxygen is bioproduct. Bioproduct से मीन है जो सह उत्पाद की फॉर्म में बनता है, जो मेन प्रोडक्ट नहीं है बट उसके साथ में बन जाता है, उसको हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं. एंड मेन प्रोडक्ट हो गया यहाँ ग्लूकोज. दोज प्लांट्स विल मेक एज अ फूड. After preparation of this glucose will store in the plants in the form of starch. जितना उनको यूज करना है अपने फंक्शंस के लिए, जितना फूड उनको यूज करना है उतना वो यूज करते हैं, एंड जो रिमेनिंग फूड मटेरियल है उसको वो स्टार्च की फॉर्म में अपने लीव, स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस, इन सभी पार्ट्स में वो अपने उस एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं, एंड वही फूड जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हेटेरोट्रॉफस हैं, वो अपने फूड के रूप में प्लांट से गेन करते हैं. So that is reaction of photosynthesis. Now photosynthesis is completed. We will start our next topic is here other modes of nutrition in plants. Plants में nutrition के और कौन से मोड हो सकते हैं? So you will see there one point. Some plants are unable to synthesize their food. So we know very well plants can make their food self, but some plants are here those can not prepare their food. कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना नहीं बना सकते हैं. तो वो कौन से पौधे होंगे? Those not have chlorophyll, they cannot make their food self. So we will study about that plant in this topic. So they depend on the other plants. Those cannot prepare their food self, they will be depend on other plants and other animals. So for their food, अपने खाने के लिए वो दूसरे प्लांट पर या फिर एनिमल पर वो डिपेंड होंगे. We will call them heterotrophs and they will use heterotrophic mode of nutrition. वो कौन सा मोड यूज कर रहे हैं न्यूट्रिशन का? That is heterotrophic. So first one type is here parasitic mode. कौन से वाले होंगे जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, उनमें हम स्टडी कर रहे हैं. दैट इज फर्स्ट वन पैरासाइटिक मोड. सो व्हाट इज पैरासाइटिक मोड? वी विल सी हियर. देयर इज अ plant that is Cuscuta. Cuscuta
इसका जो नेम है डेट इज अमर बेल। लोकल लैंग्वेज में हम इसको अमर बेल बोलते हैं, बट अगर साइंटिफिक नेम देखें तो डेट इज कस्क्यूटा। सो कस्क्यूटा हैज येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। एक्चुअल में अमर बेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये येलो कलर का होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, पतली पतली नलियां इसमें होती हैं। ट्विनिंग अराउंड दी स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अदर ट्री। तो इसकी जो टहनियाँ होती हैं वो किसी दूसरे प्लांट की ब्रांचेस और स्टेम के चारों ओर प्रेजेंट होती हैं। सो यू कैन सी दिस इन योर book. There is a figure of Amar Bel. You can see in this. This one figure you will see here. This yellowish structure you can see here. This one tubular yellowish structure that is Amar Bel. ठीक है, ये जो येलो कलर की जो नलियां जैसी स्ट्रक्चर, नलियों जैसी स्ट्रक्चर हमें इस प्लांट, इस ट्री पर नजर आ रही है, यही है कस्क्यूटा या अमर बेल। सो ये येलो कलर के, इसमें कोई भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता तो ये ग्रीन कलर की होती, बट इट इज ऑफ येलो कलर, इसमें देयर इज नो क्लोरोफिल। So if there is no chlorophyll, it means it cannot make their food self. So it will be depend on others for making their food. So that is Amar Bel. Next thing you will see why we will call this parasite. Second point, this plant do not have chlorophyll. ठीक है, इस ये जो प्लांट है इसके पास में क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड। तो ये क्या करती है, अगर ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती है तो वो रेडीमेड फूड लेगी, किसी और के थ्रू बनाया हुआ फूड वो गेन करेगी फ्रॉम द प्लांट। कौन से प्लांट से, कौन से ट्री से, ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, जिसके ऊपर वो चढ़ी हुई है, जिस प्लांट पर या जिस ट्री पर उसने ग्रो किया है, जिसके चारों ओर वो प्रेजेंट है, उसी ट्री से वो अपना फूड जो है, रेडीमेड फूड, वो वहां से गेन करेगी। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक मोड, और इसी को क्या कहा जाता है, पैरासाइटिक मोड। पैरासाइटिक मोड में क्या होता है, जो प्लांट है वो किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। So there is thing you will see here about the parasitic mode. We will divide this in two parts. First one is host and second one is parasite. So what is host and what is parasite? So you will see here about the host, the plant on which parasite climbs. So वो पौधा या वो ट्री जिस पर पैरासाइट क्लाइंब करता है, जिस पर वो चढ़ता है, जिस पर वो ग्रो करता है, उसी को क्या कहा जाता है, होस्ट। होस्ट बेटा, होस्ट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घर पर कोई गेस्ट आता है तो हम उसके लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए, क्योंकि हम उसकी केयर करते हैं, उसको फूड प्रोवाइड करवाते हैं, उसको अपने घर में स्टे करवाते हैं, तो हम उसके लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए। सो ऐसे ही जिस प्लांट पर ये पैरासाइट ग्रो करता है वो प्लांट को हम क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे, क्योंकि वही प्लांट उसको फूड प्रोवाइड करवाएगा, केयर प्रोवाइड करवाएगा। सो वी विल कॉल दैट प्लांट होस्ट। नाउ अबाउट द पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल। सो वी नो वेरी वेल, पैरासाइट जो कि जिसके पास में क्लोरोफिल नहीं है, एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। तो वो क्या करता है, जो होस्ट प्लांट है उसी से अपने न्यूट्रिएंट्स को गेन करता है, उसी से अपना खाना वो लेता है। सो यू कैन सी हेयर on this tree this Amar Bel is present. So Amar Bel या this Cuscuta is parasite. इसको हम क्या बोलेंगे, Cuscuta को पैरासाइट बोलेंगे, क्योंकि ये क्या कर रही है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है और वो इस ट्री पर ग्रो करके सारे न्यूट्रिएंट्स इसी ट्री से ले रही है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, पैरासाइट कहा जाएगा। और ये जो ट्री जिस पर Cuscuta ग्रो कर रही है, ये ट्री क्या कहलाएगा, इसके लिए होस्ट कहलाएगा। सो दिस वन totally depend on this tree for getting their food. It will not make their food self. It will be depend on other tree and on other plant for getting their food. So that is parasitic mode. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, पैरासाइट इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि ये दूसरे पर डिपेंड है, अपना फूड यहाँ से गेन कर रही है और इसको हार्म भी पहुंचा रही है, क्योंकि ये क्या करेगी, ये फूड, जो भी फूड अपने लिए प्रिपेयर कर रहा है, ये जो ट्री अपने लिए जो भी फूड प्रिपेयर कर रहा है,
वो कस्क्यूटा जो है इस प्लांट से एब्जॉर्ब कर लेगी। इन दैट कंडीशन इस प्लांट के पास खुद के न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और ये जो ट्री है वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। तो पैरासाइट जो कस्क्यूटा है वो क्या कर रही है, इस ट्री को हार्म भी पहुंचा रही है। तो दैट इज पैरासाइटिक मोड। सो पैरासाइटिक मोड इज कंप्लीटेड हेयर। नेक्स्ट वन इज हेयर इंसेक्टिवोर्स। इंसेक्टिवोर्स से मीन क्या है, Those are get food from the insect। वो अपना फूड कहाँ से ले रहे हैं, इंसेक्ट से लेंगे, ठीक है। दूसरे जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं उनको एज अ फूड वो गेन करते हैं। सो वी विल कॉल देम इंसेक्टिवोर्स। सो यू विल सी हेयर फर्स्टली definition, some plants are unable to synthesize sufficient food so they digest some insects and get nourishment। so कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि अनेबल हैं, योग्य नहीं होते हैं अपना फूड, सफिशिएंट फूड प्रिपेयर करने में, और वो डाइजेस्ट करते हैं सम इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स को वो डाइजेस्ट करते हैं एज अ फूड, वो उनको गेन करते हैं अपने नरिशमेंट के लिए। उन्हीं प्लांट्स को क्या कहा जाता है, दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर नॉन एज इंसेक्टिवोर्स। ओके, सो वन थिंग यू शुड बी नो हेयर, ये जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते हैं ये ग्रीन कलर होते हैं। इट मीन देयर आर क्लोरोफिल प्रेजेंट, सो दे कैन मेक देयर फूड सेल्फ। बट व्हाई दे आर गेटिंग इंसेक्ट्स एज अ फूड, बिकॉज दे आर ग्रोइंग इन दैट टाइप ऑफ सॉइल देयर इज नाइट्रोजन नॉट प्रेजेंट। ठीक है, वो ऐसी सॉइल में ग्रो कर रहे हैं जहां पर नाइट्रोजन नहीं होती है। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को एज अ फूड गेन करते हैं। सो देयर इज एग्जांपल एंड नेम ऑफ दैट प्लांट पिक्चर प्लांट। व्हाई वी विल कॉल दिस पिक्चर प्लांट, क्योंकि इस प्लांट की जो स्ट्रक्चर होती है वो पिक्चर जैसी होती है, घड़े जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, पिक्चर प्लांट। सो फर्स्टली यू शुड सी द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्चर प्लांट, कैसा ये पौधा होता है। सो यू कैन सी इन दिस फिगर, ये एक पिक्चर प्लांट का स्ट्रक्चर है एंड ऑन दिस लीव्स यू कैन सी दिस वन स्ट्रक्चर दैट इज पिक्चर। कैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, घड़े जैसा स्ट्रक्चर यहाँ में नजर आ रहा है, इसीलिए इस प्लांट को कहा जाता है पिक्चर प्लांट। सो यू शुड सी दिस पिक्चर प्रॉपरली। Now we will start about the picture plant, what is picture plant and how it will get their food from the insects. So you will see here, in this plant the picture like structure is the modified part of the leaf. So what is here, in this line it is telling about the structure of leaf, कि जो picture plant है एक्चुअल में उसमें जो पिक्चर्स बने हुए हैं, जो घड़े जैसी स्ट्रक्चर वहां पर बनी हुई हैं, वो एक्चुअल में क्या है, लीफ का ही मॉडिफाइड पार्ट है। जैसे यू विल सी हेयर, ये एक लीफ है और लीफ का ही एक पार्ट जो है मॉडिफाइड हो जाता है एंड मॉडिफाइड होकर के क्या बना लेता है, एक पिक्चर जैसी स्ट्रक्चर वो यहाँ पर फॉर्म करता है। सो यू कैन सी हियर दैट इज द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट इज लीड। लीड क्या होती है, जो कि इसको ओपन एंड क्लोज करने में हेल्प करती है। सो इसमें क्या हो रहा है, लीफ ही क्या कर रही है, मॉडिफाई हो रही है, मॉडिफाई होकर के एक पिक्चर जैसी, घड़े जैसी स्ट्रक्चर बना रही होती है। सो दैट इज पिक्चर। नेक्स्ट यू विल सी द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीफ। सो लीफ का जो अपेक्स है यानी उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या बनाता है, एक लीड का स्ट्रक्चर फॉर्म वहां करता है। लीड क्या होती है, ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर होती है। सो यू मे सी हेयर, लीड एक ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर है, दैट इज लीड, एंड ये क्या करती है, इसको कवर करने का वर्क करती है, इसको ओपन इन क्लोज करने का वर्क करती है। तो दैट इज लीड। नेक्स्ट वन लाइन यू विल सी हेयर, which can open and close the mouth of the picture। so इस लीड का वर्क क्या होता है, ये ओपन कर सकती है, क्लोज कर सकती है, किसके माउथ को, जो पिक्चर है, जो घड़े जैसी स्ट्रक्चर है उसके माउथ को ये ओपन एंड क्लोज करने का वर्क करती है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर which are directed downwards। so what it is telling,
कि जो पिक्चर है उसके इनसाइड में, उसके अंदर में क्या हो रहा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स डायरेक्टेड होती हैं डाउनवर्ड्स, यानी उनका जो झुकाव है वो किस तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। सो यू मे सी हेयर कि अगर हम एक पिक्चर का स्ट्रक्चर देखते हैं, नॉर्मली आई एम मेकिंग हेयर, इट इज अ रफ डायग्राम, so that is picture. So inside the picture there are small hair like structure, इस तरह की hair like structures यहाँ होती हैं और इनका डायरेक्शन किस तरफ हो रहा है, डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ झुके हुए हैं। ये जो हेयर्स हैं ये किस तरफ झुके हुए हैं, नीचे की तरफ झुके हुए हैं। तो इसकी प्रेजेंस की वजह से जब कोई भी इंसेक्ट यहाँ पर आकर के बैठता है और वो इन हेयर्स की वजह से फिसलता हुआ नीचे चला जाता है। जैसे हमने बचपन में स्लाइड्स देखी होती हैं, स्लाइड्स पे हम क्या करते हैं, जब हम ऊपर बैठते हैं तो हम आसानी से फिसल कर नीचे आ जाते हैं। तो सेम यहाँ भी ऐसा ही होता है। कोई भी इंसेक्ट जब यहाँ पर आकर बैठता है तो वो इन हेयर्स की वजह से फिसल कर नीचे पहुंच जाता है और जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, ये जो लीड हमने बनाई थी, ये जो ढक्कन यहाँ था, वो क्या करता है, इसको क्लोज कर देता है, इस स्ट्रक्चर को वो क्लोज कर देता है, बंद कर देता है। तो इन दैट कंडीशन अब वो इंसेक्ट जो है वो बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि वो बंद हो चुका है इसके अंदर। अब क्या होगा आगे, यू विल सी हेयर, When an insect lands in the picture, जब कोई भी इंसेक्ट उस पिक्चर पर, उस घड़े पर लैंड करता है, उस स्ट्रक्चर पर लैंड करता है, द लीड क्लोजेस, तो जो लीड होती है वो क्या कर देती है, बंद हो जाती है, उसको बंद कर देती है, उसके माउथ को। एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट, और वो जो इंसेक्ट है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है उस पिक्चर जैसे स्ट्रक्चर के अंदर। वो जो इंसेक्ट है वो बंद हो जाएगा। अब क्या होगा, गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थी उनके अंदर वो फंस जाएगा, वो वापस उड़ करके बाहर नहीं निकल सकता है क्योंकि हेयर्स ने उसको ट्रैप कर लिया है, लीड भी अब वहाँ क्लोज हो चुकी है। अब नेक्स्ट व्हाट विल हैपन देयर, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड, अब वो इंसेक्ट क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। सो पिक्चर के अंदर जो भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होंगे वो क्या कर देंगे, उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देंगे। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं और वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ऐसे ही इस पिक्चर में भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होंगे और वो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देंगे। एंड प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की, वो इंसेक्ट्स के थ्रू कंप्लीट हो जाएगी। सो दैट इज अबाउट द इंसेक्टिवोर्स। नाउ दिस टॉपिक इज completed. Remaining tomorrow I will teach you. Bye and take care.